So on the Wednesday, we determined the total forging load which is required for any slab, for any rectangular slab having a dimension of L, that is the width, and then H, which is the final thickness. L was also the final length, K as a shear yield stress. So I'm just writing some of the equations which we derived on that particular day. That was d sigma x over dx was equal to 2 tau by h. Okay, this was the equation we derived on the previous class. We also derived some equations, that is p plus sigma x is equal to 2k. This was the case of sliding friction. And we found that the pressure P has a variation which follows the equation 2k e to the power 2 mu by h L minus x. So this is a pressure variation, and we also found that the mean pressure was kh by mu L e to the power 2 mu L by h. All these equations we have derived in the previous class, and the total power which is required is mean pressure multiplied by 2L multiplied by W. Okay? And I hope you remember the figure. So this was the figure. P is the total force which is required to be applied. Pressure force is the force which is being generated after we apply this force on the workpiece surface. And this workpiece surface has total width of 2L, and this thickness is H, and W is the other dimension. Okay, that is the W. So these equations we derived on that particular day, and this was the condition of sliding friction, which means that the forging is being done on a room temperature. So at room temperature, generally the sliding happens between workpiece and the dies. Okay, this is the die, and this is the workpiece. Today we will discuss about sticking friction. Sticking friction कब होता है? Sticking friction तब होता है जब there is no relative motion between workpiece and die. Okay, और ज़्यादातर जो hot working condition होती है, it's because of this heat, ये जो अपर सरफेस है वर्कपीस का वो डाई के साथ ऑलमोस्ट चिपक सा जाता है ना, स्टिक हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अपर सरफेस ऑफ वर्क पीस डज नॉट हैज एनी फ्रिक्शन, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू डाई। जो वर्क पीस का अपर सरफेस है, इट मीन्स दैट इंटरफेसिंग सरफेस, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं रहता, वो स्टिक कर जाता है। इसलिए इसको, इस केस को बोलते हैं स्टिकिंग फ्रिक्शन, और ये जनरली
हॉट वर्किंग में आता है ना. हॉट वर्किंग क्या है? व्हेन द वर्किंग टेम्परेचर इज मोर देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. ओके. तो इस केस में क्या होगा कि जब कोई फ्रिक्शन ही नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो जीरो हो जाएगा, है ना. तो sorry, not mu is not zero, it's wrong to assume. There is no relative motion, simple. Okay, so there is no friction force. So in that case जो shear stress इस बॉडी के अंदर जनरेट होगा, है ना, टाउ, let me just draw another picture. So in this case there is no interface motion, it gets stick. So but because forging process is taking place, it means that the thickness is being reduced, है ना. It also means that there are stresses being generated and इसके अंदर जो shear stress generate होगा टाउ, वो shear yield stress के बराबर होगा. okay? So this interface has a constant shear strength which is equivalent to shear yield stress, है ना. जब फ्रिक्शन होता है तो टाउ इज इक्वल टू, आप बोलते हैं म्यू पी, है ना. इफ यू रिमेंबर when there was friction we found that tau is equal to mu into p, but here there is no friction, so tau is equal to k. So let's go back to the previous equation d sigma x by dx which was equal to 2 tau by h, है ना. ये इस इक्वेशन से आया था, इक्वेशन 1 अगर इसको बोल देते हैं in the previous class. Then also there was an equation in the previous class which said that dp by dx was actually minus d sigma x by dx, है ना. ये इक्वेशन भी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था. So it means that dp by dx will become minus 2 tau by h, you know, which actually means that it becomes 2 minus 2 k by h in case of sticking friction. Okay, so let us integrate this. So we can write dp by 2k is actually equal to minus dx by h, you know, or further integrating, so p by 2k will become equal to minus x by h plus a constant, let's say constant is c2. तो c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं. तो बाउंड्री कंडीशन, सेम बाउंड्री कंडीशन वी कैन यूज. सो बाउंड्री कंडीशन मीन्स एट x इज इक्वल टू l, l means half of the length here, है ना. So at x is equal to l there is no shear, there is no tensile stress, so sigma x is equal to 0, है ना. तो x की वैल्यू अगर आप l रख देंगे तो सिग्मा x 0 हो जाएगा. तो
then P will become 2K, है ना, from this equation. See equation number 2. At x is equal to L, sigma x is equal to 0, so P becomes 2K. तो P की वैल्यू यहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन में. So 2K by 2K is equal to minus L by H plus C2, which gives the value of C2 equals to 1 plus L by H. तो इसकी वैल्यू हम लोग फिर से बैक टू इस इक्वेशन में लिख देते हैं. सो P by 2K is actually equal to minus x by h plus the value of this constant, that is 1 plus L by h. Or P is equal to, this is the pressure variation, is equal to 2K 1 plus 1 by h L minus x. ठीक है. So this is the equation for pressure variation in the case of sticking friction. Notice that it is linear, है ना. तो अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो आप इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं कि when x is equal to z is equal to 0, है ना, तो p क्या हो जाएगा, 2k 1 plus L by h, let's say here some value. और जब x की वैल्यू L है, means at the outer end, so p will become, तो यहाँ पे this will become 0, so p will become 2k, है ना. 2k will be something like here. तो यहाँ पे 2k है, and this variation is quite linear. Okay, this is not an exponential variation, this is a linear variation. यहाँ पे 2k है और यहाँ पे है 2k 1 plus 1 by h L minus x. सॉरी, यहाँ पे L हो जाएगा, है ना, x is equal to 0, L by h. So again, let's try to find out what will be the mean forging pressure. तो मीन फोल्जिंग प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले किया था. मीन फोल्जिंग प्रेशर is nothing but, let's integrate the pressure term between the lengths. So 1 by L, 0 to L, and P into dx, है ना. तो इसको कर देते हैं इंटीग्रेट. 1 by L 2k 1 plus 1 by h L minus x dx. ये हो रहा है इंटीग्रेट 0 से L के बीच में. तो थोड़ा इंटीग्रेट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है. Please, all of you, do this integration and let me know the final expression. Are you guys doing this?
So after applying this limit, we can find that P is equal to 2K Sir, is it 3K? 3K. No? कैसे? Sir, there is a mistake in my calculation. 2K by L रख दिया, x की जगह L रख दिया, L plus L square by H minus L square by H by 2H. माइनस x की जगह 0 रख दिया, 0 0 0 0 0, so this becomes 0. तो 2K by L square, so यहाँ पे L हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L square by 2h. 2L square minus, so L square by 2H. Is this all right? Yes, sir. And we can common the L and तो L cancel out हो them. गया, तो 2K 1 plus L by 2H. All right. So this is the mean pressure. That means that ये जो मीन प्रेशर है ये यहाँ पे कहीं पे होगा, उसकी वैल्यू होगी, दिस इज ऑलमोस्ट 2K 1 plus L by 2H. तो टोटल फोल्जिंग लोड कितना हो जाएगा? टोटल फोल्जिंग लोड तो मीन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई उसकी जो टोटल विड्थ है, मतलब 2L, और W इज द लेंथ इन दिस अदर डायरेक्शन, है ना. Now here is a question for you, है ना, you need to think about it. Let's say कि हमने कैलकुलेट किया है ना, और ये केस है हॉट वर्किंग का, और आपको मिल गया कि आपको करीब 100 किलो न्यूटन जैसा फोर्स लगाना है. नाउ व्हाट, हाउ यू विल अप्लाई दिस 100 किलो न्यूटन लोड ऑन दिस स्लैब, है ना. आपके पास स्लैब है जिसके ऊपर आपको 100 किलो न्यूटन का लोड लगाना है. So how you will design the die so that you can apply this 100 kilonewton of load? What are the means of applying the force? Now this is a question, है ना. आपको ऐसा डाई डिजाइन करना है, तो let me give you some hint, but I will I wish that you go through other literatures, है ना. तो there are various means of applying the forces, ठीक है. तो हाइड्रोलिक मीन हो सकता है, न्यूमेटिक मीन्स हो सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ मोटर हो सकता है ना. तो मोटर से क्या करते हैं, लेट्स से यू हैव ए मोटर, है ना. मोटर्स की सहायता से हम कुछ इसका गियर्स से कनेक्शन कर सकते हैं, है ना. एंड दिस मोटर, द आरपीएम ऑफ दिस मोटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अमाउंट ऑफ फोर्स which can be applied. तो आप इस मोटर से कर सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक सोर्स, है ना. देन देर आर न्यूमेटिक सिलेंडर्स अवेलेबल, देन देर आर हाइड्रोलिक सिलेंडर्स अवेलेबल, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट है ना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये जानना चाहिए कि 100 किलो न्यूटन का फोर्स कैसे लगाएंगे. So you better go through these terminologies which I have just mentioned, that is the pneumatic cylinder, hydraulic cylinder, and load applied by using a motor. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और डिटेल मिल जाएगी. Now
This was the condition of sticking friction, but more than often the condition is neither sticking nor sliding but a mix of them. In general, हम जब भी फोल्डिंग करते हैं तो जो जनरल कंडीशन होती है वो दोनों की मिक्स होती है. Okay, so in this condition, let's say I'm saying it is mixed condition. So आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर आपको कोई भी एनवायरनमेंट मेंशन नहीं किया गया है कि फोल्डिंग हॉट कंडीशन में हो रही है या कोल्ड में होती है, देन यू मस्ट यूज द कंडीशन ऑफ मिक्स वर्किंग, है ना, या तो वार्म वेब वर्किंग भी बोल सकते हैं. इस केस में क्या होता है कि लेट्स से यू हैव ए स्लैब हियर ना, जिसको कि आप फोल्ज कर रहे हैं, इट मींस लोड अप्लाई कर रहे हैं. So you know that near the center the pressure which is being generated is highest, है ना, और जैसे जैसे सेंटर की ओर जाता है प्रेशर कम होते जाता है. तो जब प्रेशर ज़्यादा है देन इट इज़ ए कंडीशन ऑफ स्टिकिंग फ्रिक्शन, है ना. एक ऐसा जोन आप डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो स्टिकिंग नेचर का हो, और जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ पे लेट्स से कि इसके बाद थोड़ा सा प्रेशर की अमाउंट कम हो गया है, तो ये जो जोन है ये हो जाता है क्या, स्लाइडिंग. यहाँ पे स्लाइडिंग होती है ना, तो स्लाइडिंग जोन. So in this condition we can actually divide the whole length into two parts. First part is till the point where the sticking is taking place or pressure is above certain limit. After that pressure is not very high, so the sliding can take place at the interface. तो ये किस डिस्टेंस तक स्टिकिंग जोन होगा और कहाँ पे स्लाइडिंग जोन होगा. लेट्स से दिस इज ए डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय एक्स एस, है ना. एक्स एस के बाद जो है जो जोन है वो स्लाइडिंग हो जाता है. या इसको आप ऐसा भी मान सकते हैं कि टिल एक्स एस देयर इज नो फ्रिक्शन. जब फ्रिक्शन नहीं है तो जो शियर स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो शियर यील्ड स्ट्रेस के बराबर ही होगा. ठीक. और आफ्टर एक्सेस, आफ्टर दिस डिस्टेंस टाउ विल बी इक्वल टू म्यू पी. शियर स्ट्रेस जो जनरेट होगा बॉडी में वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर विच इज बीइंग जनरेटेड. तो let's go back to the previous equation where we have derived that P is equal to 2k e to the power 2 mu by h L minus x. ये किस जोन के लिए है? दिस इज फॉर स्लाइडिंग जोन के लिए है ना. म्यू आ गया तो इसका मतलब स्लाइडिंग जोन है. तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो सिर्फ एक स्लाइडिंग जोन के लिए है. इसका मतलब है कि ये सिर्फ x की वैल्यू s, या आप बोल सकते हैं प्रेशर एट एनी डिस्टेंस एक्स एस is given by this formula 2k 2 mu by h L minus xs, provided it is in the sliding zone. Okay, so in the sliding zone also tau is equal to mu p xs, है ना. ये एट
ए डिस्टेंस एक्स एस है ना। तो दिस इज द इंटरफेस, आप बोल सकते हैं एक्स एस क्या है, ये एक डिस्टेंस का इंटरफेस। इसके जस्ट बाद स्लाइडिंग जोन आ जाता है और जस्ट पहले स्टिकिंग होता है, ठीक। तो एट दिस इंटरफेस म्यू पी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू के, है ना। ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। सो पी एक्स एस is actually equal to 2 mu k is equal to mu p xs, mu p xs into e to the power 2 mu by h L minus xs. So p, this cancels out. So we can write here that 1 by 2 mu is actually equal to e to the power 2 mu by h L minus xs. और इसका अगर आप एंटी लॉग ले लेंगे, बिकॉज वी वांट टू डिटरमाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एस, इट मीन्स द डिस्टेंस, सो आई एम जस्ट टेकिंग द एंटी लॉग। सो 1 by 2 mu equal to 2 mu by h L minus xs. So this will give you the value of xs, that is the distance up to which the friction remains sticking, and after that it becomes sliding. So it becomes कितना हो जाएगा, L minus just a minute. Okay, so it becomes L minus h by 2 mu 1 by 2 mu. So this is the distance up to which the friction or the forging remains of sticking nature, and after that it becomes sliding nature. So for sticking zone, is that all right? Are you all getting this formula? नहीं आ रहा है? Okay, so for sticking zone, I am just going back to the previous equation where we derived that dp by dx is equal to minus 2 tau by h, है ना। तो अगर स्टिकिंग जोन है, इसका मतलब है टाउ की वैल्यू k है, इसका मतलब इट बिकम्स माइनस 2k बाई h, और dp इज इक्वल टू माइनस 2k by h dx, or we can just write that P, that is the average pressure, is equal to minus 2k x by h plus C3. C3 is another constant. तो अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगाए तो x at x is equal to xs, pressure is represented as Pxs, and this is equal to how much, 2k e to the power 2 mu by h L minus xs, है ना। ये मैंने बस यहाँ से इक्वेशन ले लिया, ठीक। सो Pxs is equal to
-2 k xs by h plus C3, और C3 is equal to Pxs plus 2k by h xs। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट्स C3 की वैल्यू आ गई, सो लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस इक्वेशन। सो P इज इक्वल टू -2k x by h प्लस C3 की वैल्यू लिख देते हैं Pxs प्लस 2k by h xs, या फिर से इसको कर लेते हैं क्या, Pxs प्लस 2k by h x xs minus x। So this is a pressure which is being generated on the application of load P. So the value of, यहाँ पे Pxs की वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, है ना। प्रीवियस इक्वेशन जो था दैट इज दिस वन, है ना। और 2k बाई एच एक्सेस माइनस एक्सेस की वैल्यू आप इसके पहले यहाँ से निकाल सकते हैं। सो यू कैन डिटरमाइन, दिस इज फॉर द स्टिकिंग जोन, ओके। एंड स्टिकिंग जोन के लिए अगर हमें एवरेज प्रेशर निकालना हो, ये एवरेज निकालना हो, दिस वाज द वेरिएशन, अगर हमको एवरेज निकालना है सो P के ऊपर हम लोग ऐसा बार का निशान लगा देते हैं, और 1 over xs because the length is xs, 0 to xs, and then this pressure force जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिराइव किया है उसका है Pxs plus 2k by h x xs minus x dx। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है, एनीवन। Pxs ही रहेगा कांस्टेंट, ठीक। और ये 2k बाई एच इज ए कांस्टेंट, और ये एक्स माइनस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए 0 to एक्सेस। so what you will get is xs into x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट लगा दीजिए 0 से एक्सेस। so the mean pressure you will get is Pxs प्लस कितना आ जाएगा ये, एक्सेस स्क्वायर 0, सो how much, k by
एच, दो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बिकम इनटू एक्सेस, है ना। Sorry, this will be square. Is that? Is it all right or there are some issues? Sir, I just have one doubt. हाँ हाँ बोलिए। Here in the for sticking zone, इसमें सर x equals to xs और p equals to pxs, उसमें वो स्लाइडिंग वाली फॉर्मूला क्यों लिए pxs? 2k e raised to 2 mu by h into l minus x. I'm not getting, just please repeat it. Sir, in the sticking zone part, हाँ हाँ यहाँ पे x is equals to xs, comma p is equals to pxs हाँ हाँ is equals to 2k e raised to 2 mu by h, वो वाली जो फॉर्मूला है हाँ वो हाँ। स्लाइडिंग की है ना, तो सर यहाँ पे स्टिकिंग में क्यों यूज किया? अच्छा, तो ये देखिए एक्स एस क्या है, दिस इज इंटरफेस ना, x इज इक्वल टू एक्स एस मीन्स एट दिस इंटरफेस। ये जो Yes. इंटरफेस है यहाँ पे कितना प्रेशर है आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप दोनों तरह से पता कर सकते हैं, इस साइड से भी पता कर सकते हैं और इस साइड से भी, स्टिकिंग से भी और स्लाइडिंग से भी, है ना, बिकॉज दिस इज इंटरफेस। ठीक, नाउ व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस फॉर डिटरमाइनिंग दिस C3, है ना, then we need to put the values such as we can determine this boundary condition, this constant C3। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है, आप बताइए। अगर आपको C3 निकालना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है एक्चुअली, है ना, तो अगर आपको C3 निकालना है तो आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। अगर आप C3 की वैल्यू ये रखते हैं तो ही आप ये बाउंड्री C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते, Yes. है ना। जस्ट डू ए सिंपल मैथमेटिक्स। अगर आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पे स्टिकिंग जोन के फॉर्मूला लगा सकते हैं, यू जस्ट ट्राई इट, है ना, एंड देन लेट मी नो वेदर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C3 और नॉट। इट्स जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक, Yes, sir. ओके, सो अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ जो गलती की है ना, वो ये कि यहाँ पे 1/XS भी था ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे XS को नहीं किया, तो यहाँ पे XS का स्क्वायर नहीं होगा बल्कि सिर्फ XS हो जाएगा। ठीक, सो दैट इज द मीन प्रेशर, है ना। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज PXS की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। PXS की वैल्यू जो थी वो है 2K, where it is 2K e to the power 2 mu by h L minus XS plus K by H XS। ये जो वैल्यू है दिस इज वैलिड फॉर स्टिकिंग जोन, है ना, और स्लाइडिंग जोन के लिए हम लोग ऑलरेडी एक्चुअली डिटरमाइन कर चुके हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन जब डेराइव किया था, तो हम लोग दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं और फिर दोनों की सहायता से टोटल फोर्जिंग लोड भी निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना, लेट्स से कि वी हैव ए लिड, है ना,
वी हैव वन मटेरियल, लेट्स से वन मटेरियल जिसकी की साइज है 24 mm इंटू 24 mm इंटू 150 mm, है ना, ये इनिशियल साइज है। ठीक, इसका मतलब है कि ये 24 है, ये 24 है, और इसकी ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी 150 mm, लेट्स से। ठीक, नाउ दिस रेक्टेंगुलर स्लैब इज फोर्स्ड बिटवीन टू डाइज, है ना, इसको दो डाइज के बीच हमने फोल्डिंग की इसकी। ठीक, और फाइनल शेप लेट्स से इज, ये जो इसकी हाइट थी ये हो गई 6 mm, और विड्थ जो है 24 से बढ़ के हो गया 96 mm, और इसकी लेंथ लगभग सेम है 150 mm, है ना, देयर इज नो चेंज। ठीक, तो फाइनल जो है वो कुछ ऐसा हो गया, है ना। दिस इज आफ्टर दी फोल्डिंग हैपन। तो ये 6 हो गया, ये 96 हो गया, और ये 150 ही है। Okay, so let's say the coefficient of friction is given as 0.25. We need to determine the maximum forging force. ज़्यादातर जो हमारा समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो मैक्सिमम फोल्डिंग फोर्स ही निकालना होता है, क्योंकि फोल्डिंग फोर्स को निकालने के बाद ही आप डाई को डिज़ाइन करते हैं कि डाई के थ्रू कितना फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन आप दे सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम फोल्डिंग फोर्स आपको निकालना है, और सिग्मा वाई दिया है, सिग्मा वाई दैट इज यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन, एंड इट इज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कोई कंडीशन नहीं दी है, जैसे कि इट हैज नॉट बीन गिवन वेदर इट इज स्लाइडिंग नेचर और स्टिकिंग। ठीक, तो व्हेन इट इज नॉट गिवन वी विल टेक द कंडीशन ऑफ मिक्स, है ना। बट व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल रिकमेंड यू टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स in case of sliding condition and in case of sticking condition, and then compare them, है ना। दोनों को आप करिए और दोनों में को कंपेयर करके देखिए कि किसमें फोल्डिंग फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। आई एम हियर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर द मिक्स कंडीशन, है ना, जस्ट। तो मिक्स कंडीशन के लिए शेयर यील्ड स्ट्रेस पहले निकाल लेते हैं के, क्योंकि बहुत जगह यूज होगा। तो के जो है वो एज पर वॉन माइसेस थ्योरी इट इज सिग्मा वाई बाई √3, है ना, सिंपल। तो 7/√3 कर दिया, सो इट बिकम्स 4.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, now because it is the condition of mixed zone, let us try to find out कि किस width तक स्लाइडिंग होगा, सॉरी स्टिकिंग होगा, और उसके बाद स्लाइडिंग होगा। तो इसका मतलब है कि एक्स एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स एस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, एल माइनस एच बाई 2 म्यू नेचुरल लॉग 1/2 म्यू। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमेंबर ऑल दीज आर फाइनल वैल्यूज, है ना। हम लोगों ने जो भी चीज़ें डिराइव की है वो एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन ही की है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ ऑपरेशन ही हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू एल सिग्मा x बिकम 0, है ना। तो ये एट द एंड ऑफ ऑपरेशन ही पॉसिबल है। तो ये जो l है ये फाइनल लेंथ है। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनीवन? What will be the value of L? थोड़ा बोलिए मुझे। यहाँ पे देखिए L क्या था, सेंटर से डिस्टेंस था ना, है ना, दिस वॉज L।
तो टोटल एक्चुअली ये एल है ना, तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँ मैं, 48 रख दूँ, चलेगा? इज दैट ऑल राइट? yes sir. माइनस एच क्या है, 6 है ना, 2 इंटू म्यू, म्यू इज 0.25, तो 2 इंटू म्यू हो गया 0.5, नेचुरल लॉग 1/0.5। थोड़ा बताइए मुझे कितना आया, कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करिए। $39.6822. सो इट इज़ 39.68। इसका मतलब है कि ये जो 48 की लेंथ थी, इसमें कहीं यहाँ तक है ना, 39 तक, 39.68 तक स्टिकिंग फ्रिक्शन है ना, और उसके बाद जो है ये छोटा सा जोन जो 11 या 10 mm के आसपास है, वो स्लाइडिंग है। ओके, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 48 माइनस 13, दिस इज स्टिकिंग जोन, एंड remaining is 8.32. 8.31 mm is sliding zone, ठीक। Okay, so let's go back and तो अभी स्टिकिंग जोन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। स्टिकिंग जोन के लिए मीन प्रेशर कितना हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने स्टिकिंग जोन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया है, जस्ट राइट नाउ, दैट इज 2k e to the power 2 mu by h L minus xs plus k into xs by h ना, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने जस्ट डिराइव किया, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। 2 k जो है वो 4.04, e to the power 0.5 दैट इज 2 म्यू, h की वैल्यू है 6, l की वैल्यू है 48 और xs की वैल्यू है 39.68 प्लस k की वैल्यू है 4.04 इंटू xs की वैल्यू है 39.68 और h की वैल्यू है 6। तो स्टिकिंग जोन के लिए ये थोड़ा कैलकुलेट करके बोलिए कितना आ रहा है। $42.87. 42.87, okay, this is Newton per mm square, this is the mean pressure, okay। तो टोटल कितना फोर्स हो जाएगा, टोटल अगर निकालना है तो टोटल के लिए क्या करते हैं, मीन मल्टीप्लाइड बाई
ट्वाइस ऑफ द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, है ना, W। तो मीन आ गया आपका 42.87 और 2L मतलब 2 इंटू 39.68, है ना। 39 इधर है, 39 इधर है, 39 दिस साइड, 39 दिस साइड, सो ट्वाइस ऑफ दैट इंटू W जो है वो 150 है, to 150, so it becomes how much, that is 510,453.83 न्यूटन। या आप इसको सिंपली बोल सकते हैं कि 510 किलो न्यूटन का फोर्स चाहिए आपको, है ना। दिस इज फॉर स्टिकिंग जोन। स्लाइडिंग जोन के लिए क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग जोन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मीन प्रेशर कितना होता है, दैट इज थोड़ा बताइए मुझे स्लाइडिंग जोन का फॉर्मूला, मीन प्रेशर 2K into 1 plus L by 2. मीन प्रेशर No. फॉर स्लाइडिंग जोन फर्स्ट केस के लिए। KH by mu L into KH by mu L into e to the power 2 mu L by h minus 1, करेक्ट। yes. ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 4.04, h की वैल्यू हो गई 6, म्यू की वैल्यू हो गई 0.25 और L की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.31, करेक्ट। एंड देन e टू द पावर 2 इंटू 0.25 इंटू L हो गया 8.31 divided by h is 6 minus 1. Okay, so this mean pressure will become, this is approximately 11.65, okay, Newton per mm square. तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा स्लाइडिंग जोन के लिए, दैट इज 11.65 multiplied by twice of the length, so 2 into 8.31 multiplied by 150. So how much this is 11.65 into 2 into, so this is like 29085.32 Newton, or you can say it is approximately 29 kilonewton. तो टोटल फोल्जिंग लोड हमें कितना चाहिए इस केस के लिए? टोटल फोल्जिंग लोड तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 510 453.83 प्लस 29085.32. So this will become something like this, 0.54 into 10 to the power 6 Newton. This is the total forging force which will be required if we want to do the forging and the condition is of mixed forging. You can compare this by sliding zone, है ना। यहाँ पे अगर आप करेंगे और इस इक्वेशन का यूज करेंगे और L की वैल्यू पूरा 48 रख देंगे
तो आपको स्लाइडिंग जोन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और इस इक्वेशन में एक्स एस की वैल्यू 0 रख देंगे, या पुराना वाला जो आपका हम लोगों ने स्टिकिंग जोन के लिए निकाला था, है ना, तो आप स्टिकिंग जोन के लिए निकाल सकते हैं। एंड देन यू कैन कंपेयर द टोटल फोर्जिंग लोड इन ऑल 3 केसेस। तो सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए और सबसे कम किस में होना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए कोल्ड फॉर्मिंग में, है ना। कोल्ड फॉर्मिंग में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, और कोल्ड फॉर्मिंग में क्या होता है? स्लाइडिंग जोन होता है, करेक्ट। इसका मतलब है कि स्लाइडिंग जोन में जो फोर्स आना चाहिए वो स्टिकिंग जोन और मिक्स जोन से ज़्यादा आना चाहिए। सो दिस इज नाउ योर पार्ट टू जस्ट सी द कंपैरिजन, ओके। Another question which I am giving you, है ना, you need to solve it. So let's say there is a block of size 25 into 25 into 150 mm का एक ब्लॉक है, and it is pressed between flat dies to a size of 6.25 mm into 100 mm into 150 mm. सिग्मा वाई दिया है 6.9 मेगापास्कल्स और म्यू दिया है 0.25। ठीक, ये ओरिजिनल है साइज, दिस इज द फाइनल साइज। So you need to determine the total forging load. Okay, so total forging load देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 600 किलो न्यूटन जैसा आना चाहिए। So this is your part to check whether you know this concept now or not. So this was all about the forging of rectangular slab. The next topic is the forging of disc. Disc means circular slab आप बोल सकते हैं, ना? So let's say we have a disc which has a radius r और diameter of 2r। ठीक, और इसका जो थिकनेस है वो है h। ओके, एंड इसको प्रेस करते हैं, लेट्स से इसको प्रेस कर रहे हैं दो डाइस के बीच, तो एक दूसरा फिगर बनाते हैं, दो डाइस हैं, और आपने इसके बीच में रख दिया। ये फ्रंट व्यू है ना, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू। Okay, and we are applying some force F here. So this is normally how the forging of disc is carried out. So it's a very schematic figure, you can say, of this circular disc having thickness h and radius r. Let's say that we are considering the polar coordinate, you know, that is
r theta and gamma. Okay. So एक छोटा सा लेट्स से कि ये इसका जब हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, है ना, समवेयर लाइक हियर. ठीक. और ये एंगल जो है ये है द सबटेंडिंग एंगल इज डी थीटा. ठीक. और ये जो है वो एट ए रेडियस, मीन रेडियस आर पे है, और आउटर साइड का जो रेडियस हो गया वो है आर प्लस डी आर. ठीक. तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बना रहा हूँ ना. इट्स लाइक दिस. ठीक है. ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है डी थीटा, and at a radius, mean radius r, and this is dr. ठीक. और इसी का पार्ट यहाँ पे है ये, है ना, थिकनेस वाइज वो हम लोगों ने ले लिया ये. इज दैट ऑल राइट? सो एक चीज देखिए कि जब आप इस डिस्क पे फोर्स लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा कि फोर्स तो हर जगह लगेगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगेंगे, फोर्स इधर भी आएगा, है ना. ये अगर थीटा डायरेक्शन ले रहे हैं हम लोग, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा थीटा. सिमिलरली ये फैल भी रहा है ना, तो ये आर की डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा, यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्लस डी आर, और इस साइड लिख सकते हैं क्या, सिग्मा आर. ठीक. और हम लोग अगर इस ये बहुत ही छोटा है ना, देन वी कैन ऑल्सो राइट दैट सिग्मा थीटा और सिग्मा आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी, क्योंकि ये सर्कुलर है. देखिए ये एकदम होमोजीनियस है ना, तो वो जितना इस डायरेक्शन में फैल रहा है उतना ही लगभग इस डायरेक्शन में भी फैल रहा है ना. तो ऐसा बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा आर. So let's consider the radial equilibrium of this component. Okay. तो अगर radial equilibrium या force equilibrium in radial direction, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर into h, that is the height, into r plus dr into d theta, है ना. ठीक है. ये जो है दिस लेंथ इज r प्लस डी आर इंटू डी थीटा, ये आर्क, माइनस, है ना, हम लोगों ने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस सिग्मा आर इंटू एच इंटू आर डी थीटा. ठीक है. माइनस
और क्या फोर्स लगेंगे? अगर आप ये फ्रंट व्यू देखिए, है ना, तो अगर ये मैं फ्रंट व्यू का पिक्चर बना रहा हूँ, so now this part will be subjected to shear stress also. तो shear stress की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, and there is the load acting on this direction, है ना, which is the active pressure P. तो यहाँ पे shear stress जनरेट होगा टाउ और acting pressure is P. This is the free body diagram in of the front view, ठीक। तो अगर इसको देखिए तो 2 into tau into कितना हो जाएगा, r d theta dr, ठीक। माइनस और कौन सा फोर्स बच गया? अच्छा, ये सिग्मा थीटा बच गया। सिग्मा थीटा जो रेडियल स्ट्रेस है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ भी होगा, इसका एक कंपोनेंट ये नीचे की ओर, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, है ना। तो सिग्मा थीटा -2 सिग्मा थीटा हो जाएगा इंटू एच इंटू डी आर साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। डी थीटा ये आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए मैं दोबारा से ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज लाइक दिस, है ना, और ये रेडियल स्ट्रेस है इन थीटा डायरेक्शन, ठीक। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ये और एक होगा ये, ठीक। अभी ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? डी थीटा, है ना। इसका मतलब है कि ये हो गया कितना? डी थीटा बाई 2। तो ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये भी डी थीटा बाई 2 हो गया। तो इसका कॉस कंपोनेंट जो होगा सिग्मा थीटा का, वो होगा सिग्मा थीटा कॉस डी थीटा बाई 2, है ना। और यहाँ पे सिग्मा थीटा साइन डी थीटा बाई 2, मैंने यही ले लिया है सिग्मा थीटा, क्योंकि हम लोग रेडियल डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो सिग्मा थीटा साइन डी थीटा बाई 2 इंटू एच, और ये हो गया डी आर, है ना। दिस इज डी आर और नीचे एच था, तो 2 सिग्मा थीटा एच डी आर साइन डी थीटा बाई 2। ओके, एंड is that all right? All of you are getting this equation? कुछ आ रहा है समझ में या कुछ भी नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर दोबारा से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं सिग्मा थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सिग्मा आर, ठीक। और व्हेन
थीटा इज वेरी स्मॉल, देन वी नो दैट साइन थीटा इज थीटा, है ना। तो साइन डी थीटा बाई 2 जो है वो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। तो ये वैल्यूज हम लोग रख देते हैं इस इक्वेशन में। So let's rewrite this, sigma r plus d sigma r into h into r d theta plus h into dr d theta। dr d theta फिर से बहुत छोटा हो जाता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं बाद में। माइनस सिग्मा r into h into r d theta minus 2 tau into r d theta dr। डी थीटा डी आर फिर से बहुत छोटा हो जाएगा, इसको भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। 2 सिग्मा थीटा इंटू एच इंटू डी आर डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या क्या कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं, इसको भी खोल देते हैं ना। सिग्मा आर इंटू एच इंटू आर डी थीटा प्लस सिग्मा आर इंटू एच इंटू डी आर डी थीटा प्लस डी सिग्मा आर इंटू एच इंटू आर डी थीटा प्लस डी सिग्मा आर इंटू एच इंटू डी आर इंटू डी थीटा, ठीक, माइनस सिग्मा आर इंटू एच इंटू आर डी थीटा माइनस 2 टाउ आर डी थीटा डी आर माइनस 2 सिग्मा थीटा इंटू एच इंटू डी आर डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो h लगभग सब जगह आ रहा है। सर सिग्मा आर एच आर डी थीटा कैंसल हो जाएगा, प्लस फाइनल सिग्मा आर एच आर डी थीटा फर्स्ट टर्म एंड डी थीटा सिग्मा आर एच डी थीटा और जस्ट अ मिनट, सिग्मा आर एच डी थीटा सिग्मा आर एच डी थीटा डी सिग्मा आर यहाँ पे एच डी थीटा, ओके यहाँ पे तो सिग्मा आर जस्ट अ मिनट सिग्मा आर एच, ओके ये कैंसिल हो गया सिग्मा आर और ये है ना, ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया। सिग्मा आर इंटू एच इंटू डी आर डी थीटा, ओके ये जो है सिग्मा आर और सिग्मा थीटा लगभग बराबर है ना। तो इसको हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं, 2 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो ये और ये भी गया, ठीक। तो और हमारे पास क्या बच गया, डी सिग्मा आर एच इंटू आर डी थीटा डी सिग्मा आर इंटू एच इंटू डी आर डी थीटा, ओके। तो यहाँ से हम और इसमें क्या है डी थीटा डी आर,
डी थीटा तो पहले हटा देते हैं ना, डी थीटा डी थीटा डी थीटा, ठीक। और तो हमारे पास बच गया, अच्छा आर भी जाएगा, हार गया, हार गया और आर गया, ठीक। तो हमारे पास बच गया क्या, एच इंटू डी सिग्मा आर माइनस 2 टाउ डी आर ये वाला टर्म मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, देखिए है ना, क्योंकि डी सिग्मा आर इंटू डी डी आर है ना, डी सिग्मा आर डी आर दोनों ही बहुत छोटे हैं, सो आई एम जस्ट नेग्लेक्टिंग दिस टर्म। So h into d sigma r minus 2 tau dr is equal to 0. Okay. Or we can write d sigma r by dr is equal to 2 tau by h. So this is equation 1. Now in case of sliding friction, what will happen? थोड़ी सी चीज़ें हम लोग पीछे से भी ले लेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू प्रेशर पी, और इसको अगर हम लोग रख दें तो हम लोग को मिल जाएगा डी सिग्मा आर बाई डी आर is actually 2 mu p by h. Again, to simplify the analysis, we need to consider 3 principal stresses. तो इस कंडीशन में 3 इस तरह के स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, देखिए सिग्मा आर हो रहा है, सिग्मा थीटा हो रहा है, और क्या हो रहा है, P, that is the applied pressure, है ना, ठीक है। अगर आप ये टॉप व्यू देखिए तो 2 तरह के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा आर और सिग्मा थीटा, और अगर आप फ्रंट व्यू देखिए तो यहाँ पे P है ना। तो these 3 आर एक्चुअली इट इज कंप्रेसिव, तो मैं माइनस P ले रहा हूँ, है ना। These 3 आर एक्चुअली द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जस्ट वी आर सिंप्लीफाइंग द एनालिसिस, है ना। तो let's apply this von Mises criteria considering this as principal stresses. So we know that as per the von Mises criteria, sigma 1 minus sigma 2 का whole square plus sigma 2 minus sigma 3 का whole square plus sigma 3 minus sigma 1 का whole square जो है it must be equal to 6k square, है ना, as per the von Mises. जहाँ पे सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और ये सिग्मा आर, सिग्मा थीटा और माइनस पी हम लोग ले लेते हैं अगर, तो इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं सिग्मा आर माइनस सिग्मा थीटा का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा थीटा प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस माइनस पी माइनस सिग्मा थीटा का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 6k स्क्वायर। तो सिग्मा आर और सिग्मा थीटा बराबर है 0 हो गया, और सिग्मा थीटा वहाँ पे माइनस P माइनस सिग्मा आर का होल स्क्वायर है, हाँ सिग्मा 1
सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, तो माइनस पी माइनस सिग्मा आर का होल स्क्वायर हाँ माइनस इंस्टेड ऑफ सिग्मा आर, सिग्मा। सॉरी। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, हाँ माइनस को अगर हम कॉमन ले लिए तो वो प्लस हो जाएगा, है ना। एंड सिग्मा आर इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा थीटा, सो इट बिकम्स 2 सिग्मा थीटा प्लस पी का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 6k स्क्वायर, है ना। सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा थीटा ले लिया, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा थीटा प्लस पी मस्ट बी इक्वल टू √3k, है ना। तो इन केस ऑफ a disk, सिग्मा थीटा प्लस पी इज इक्वल टू √3k, ओके। इसको अगर आप सिग्मा आर के टर्म में लिखें तो सिग्मा आर प्लस पी इज √3k। ये दोनों ही इक्वेशन होल्ड होगी। तो हम लोग इसको सिग्मा आर प्लस पी इज इक्वल टू √3k को डिफ्रेंशिएट कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस डी पी बाई डी आर is equal to √3, k is a constant, so I'm just writing dk by dr, na, which is actually equal to 0, है ना। So d sigma r by dr is minus dp by dr, एंड इक्वेशन 1 जो हम लोगों ने डेराइव की थी उसके हिसाब से क्या था कि डी सिग्मा आर बाई डी आर जो था वो था 2 म्यू पी बाई एच, करेक्ट। In case of sliding friction, so putting this value here, we can write minus dp by dr is 2 mu p by h, ना? या dp by p is equal to minus 2 mu dr by h। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, लेट्स से, then what we will get is log, natural log of p is minus 2 mu r by h plus c। और अगर बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो एट द आउटर साइड, है ना, एट द आउटर रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R, सिग्मा r एंड सिग्मा थीटा बोथ आर 0। आउटर सरफेस जो है वो एट द एंड ऑफ ऑपरेशन जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है ना, बाकी जगह थोड़ा स्ट्रेस रहते हैं बट आउटर सरफेस इज ऑलवेज स्ट्रेस फ्री। तो इस वैल्यू को हम रख देते हैं कहाँ, हाँ तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें अगर, तो P इज इक्वल टू √3k हो जाएगा, है ना। So log of P की वैल्यू क्या है, √3k, √3k is equal to minus 2 mu r by
H plus C, या C की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ रूट 3k प्लस 2 mu r by h. दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो इसको हम लोग दोबारा से बैक टू दिस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम रख दें तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, log ऑफ p is equal to minus 2 mu r by h plus 2 mu capital R by h plus log of root 3k, और p बाई 3k क्या हो जाएगा, p बाई 3k को अगर हम यहाँ ले आते हैं, सो सॉरी रूट 3k is e to the power 2 mu by h capital R minus small r, या p is equal to root 3k e to the power 2 mu by h capital R minus small r, and we know that root 3k is nothing but sigma y, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e to the power 2 mu by h capital R minus small r. So this was the condition of sliding friction. Okay. In case of sticking friction, इसमें भी वही होगा कि एक लिमिटेड रेडियस तक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा और उसके बाद सॉरी स्टिकिंग फ्रिक्शन होगा और उसके बाद स्लाइडिंग, इन जनरल ऐसा होता है, बट फॉर द केस ऑफ स्टिकिंग फ्रिक्शन the analysis generally remains same as we did in plain rectangular slab, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये derive कर सकते हैं कि xs is equal to L minus h by 2 mu वन बाई 2 म्यू, ये आया था हम लोग के रेक्टेंगुलर के केस में, है ना। अगर हम यहाँ पे सर्कुलर के केस में करें तो हम लोग ऐसा ही एक रेडियस निकाल सकते हैं, वेर आर एस जो है वो उसकी वैल्यू आर माइनस एच बाई 2 म्यू, सेम उसी तरह की एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। सो आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ स्टिकिंग फ्रिक्शन, सेम जैसा हम लोगों ने पहले किया था, P is equal to then P RS is for sticking friction case, है ना, radius till sticking friction plus root 3k by h RS minus smaller. The analysis goes very similar to the rectangular slab, है ना। अगर आप rectangular slab की analysis देखिएगा तो आप सेम इस तरह के formulas को derive कर सकते हैं very easily. So I am avoiding because it will become repetition and we don't have that much time. और ये जो PRS है, it means that pressure at that radius at which the sticking zone ends and the sliding zone appears is given by this formula root 3k e to the power 2 mu by h rs minus sorry r minus rs.
So this formula you can use and you can derive using the previous one. और अगर पूरा ही स्टिकिंग जोन है ना, तो P की क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, √3 के 1 + 1/h r - r. दिस इज एकदम ये वैसे ही है जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर स्लैब में डेराइव किया है ना. आई हैव जस्ट फॉलोड दी सेम थिंग. So this is all about forging process. You can see some of the numerical in the book of Ghosh and Malik, as well as P.N. Rao. You know? So this is the end of the class. In the next class, we will be starting with another operation, which is drawing and deep drawing. Okay. Is there any question?